ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖିବ ତୁମର କିଛି ଗୁଣ ତୁମ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯଦି ତୁମ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଅଛି ତାର ରଙ୍ଗ କଲା ଥିଲେ ତୁମ ମା କିମ୍ବା ବାପା କାହାରି ବି ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ କଲା ଥିବ, କିମ୍ବା ତୁମ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ଯଦି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମ ମାଙ୍କର ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ବ୍ରାଉନ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ବ୍ରାଉନ୍ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଆଖିର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ ତୁମର ଆଖି ତୁମ ମାଙ୍କ ପରି ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପରି କାହା ପରି ବି ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖିବା, ତୁମ ମା ବାପା ଯଦି ଛୋଟ ହେଇଥିବେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣଟା ମିଳିବ। ତୁମେ ବି କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ବି ହାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ମାଙ୍କ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ସହ ଆମ ଗୁଣଟା ସମାନ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗୁଣଟା ଆମେ କାହାଠୁ ପାଇଛି? ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବଂଶାନୁକ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୁଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଥାଏ ସେ ଗୁଣଟା ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? ବଂଶାନୁକ୍ରମ କହିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେମିତିକି ତୁମ ବାପା ଯଦି ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କିମ୍ବା ତୁମର କୌଣସି ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ ଦେଖିବ ଡେଙ୍ଗା ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଥିଲା ସେଇ ଗୁଣଟା ତାପରେ କାହାଠିକି ଆସିଲା? ତୁମଠିକି ଆସିଲା, ନହେଲେ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀଠିକି ଆସିବ। ବୁଝିହେଉଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୁଣଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବଂଶାନୁକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ମାତା ପିତାଙ୍କର ଗୁଣଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବଂଶାନୁକ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଜନନ ଓ ନୂତନ ଗୁଣର ଆବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୁଣ କାହାଠିକି ଆସିଲା? ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କଠି ଆସିଲା। ଯେମିତିକି ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କ ଗୁଣଟା କାହାଠିକି ଆସିଲା? ତୁମଠିକି ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ମା ବାପା ସହିତ ସମାନ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ପୁରା ତୁମ ମାଙ୍କ ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସବୁ ଗୁଣ ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଦେଖିବ କିଛି ପିତାମାତା ଥିବେ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ଟା ବା ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଛୋଟ ଥିବ, ମାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ବି ଛୋଟ ଥିବ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ବି ଛୋଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଥିବ ତାର ହାଇଟ୍ କ'ଣ ଥିବ? ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଥିବ। ବୁଝିହେଲା? କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ବି କଳା, ମାଙ୍କ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ବି କଳା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିବ? ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଆମଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମଠି କିଛି ନୂତନ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୌଳିକ ପୈତୃକ ଗୁଣ ସହ କେତେକ ନୂତନ ଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜୀବମାନେ, ଯେମିତିକି ମଣିଷ ଠାରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ସମାୟନ ଘଟିକି କ'ଣ ହେବ? ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ହିଁ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୌଳିକ ପୈତୃକ ଗୁଣ ସହ କେତେକ ନୂତନ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୌଳିକ ପୈତୃକ ଗୁଣ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମୌଳିକ ପୈତୃକ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ତା ସହ କେତେକ ନୂତନ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ମନେକର ତା ନାଁ ହେଲା ଚିଣ୍ଟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଚିଣ୍ଟୁର ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ ହେଲେ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ତା ମାଙ୍କ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ କଳା ଅଛି, ତ ଚିଣ୍ଟୁର ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ କଳା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବା, ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ? ଚିଣ୍ଟୁର ହାଇଟ୍ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ହାଇଟ୍ଠୁ ବହୁତ ବଡ଼। ତା ମା ବାପା ହାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ଚିଣ୍ଟୁର 2 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁର ହାଇଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ବଡ଼। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଚିଣ୍ଟୁର ଯେଉଁ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ପୈତୃକ ଗୁଣ। କାହିଁକି ନା ତାହା ତା ମା ବାପାଙ୍କଠୁ ତାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୁଣ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କାହିଁକି ନା ଚିଣ୍ଟୁର ମା ବାପାଙ୍କ ହାଇଟ୍
छोट होइथिले मध्य चिंटूर हाइट कौन अच्छी बहुत बड़ अच्छी माने चिंटूर हाइटटा ता माँ बापा सह समान नुह से चिंटूरे किछि नूतन गुण मध्य परिलक्षित है बुझीपार ना आमठी जो गुण गुराक भी अच्छी किछि गुण आम माँ बापा पाई था ताकू आम मौलिक पैतृक गुण कही था किंतु किछि गुण आमर अलगा थाए जोटा कि माँ बापा भलिया न थाए ताकू आम कौन कही था नूतन गुण कही था बुझीपार ना से आम माँ बापा भलिया पूरा नुह आम माँ बापा कौन टिके टिके भी अलगा अच्छु बुझीपार ना तापर देख पीढ़ी पर पीढ़ी नूतन गुण गुड़िकर आविर्भाव हेतु विविधता बढ़ी चली थाए देख पीढ़ी पर पीढ़ी कौन हुए नूतन गुण गुड़िकर आविर्भाव हुए देख एठी आमे देखिले जे पितामाता तो किछि गुण मिली थाए ता सहित कौन किछि नूतन गुण मध्य कौन होई थाए परिलक्षित होई थाए आउ पीढ़ी पर पीढ़ी जदि आमे देखिबा से नूतन गुण गुड़िक आविर्भाव हेबा हेतु विविधता बढ़ी चली थाए माने डिफरेंसटा बढ़ी चली थाए माने देख जेमिति कि एठी जदि आमे देखिबा देख एइटा जदि हेले माँ आइटा जदि हेले बापा ठीक अच्छी तो एठी जो अपत्यटा सृष्टि हेबो ठीक अच्छी एठी या देहरे माँकर किछि गुण आसीबो आ बापांकर किछि गुण भी आसीबो ठीक अच्छी तापरे ये जेते बड़ हेबो ये जेते बेले बड़ हेबो ठीक अच्छी तापरे तार जो पिला माने हेबे ठीक अच्छी मन कर एइटा हैला यार पिला ठीक अच्छी तो एइठी जो गुणटा परिलक्षित हेबो एई छुआरे जो गुणटा आसीबो एटा याठू अधा आसीबो ता माठू अधा आसीबो ता बापाठू अधा आसीबो ठीक अच्छी किंतु किछि नूतन गुण मध्य तो देखा हेबो ना देख एई जो ये जो अच्छी ठीक अच्छे मन कर एटा हैला चिंटू चिंटू ठारे जो गुण गुड़िक परिलक्षित हेबो किछि गुण से कौन पाइबो माठू पाइबो आ किछि गुण से काहाठू पाइबो बापाठू पाइबो मन कर ये हेले बापा सॉरी ये हेले माँ ये हेले बापा ठीक अच्छे ये हेला चिंटू सॉरी यार ना हैला चीनी मन कर चीनी यार ना हैला चीनी ठीक अच्छे एटा झीलटा हैला तापरे चीनी चीनी ठारे जो गुण गुड़िक अच्छी से माँ ठू किछि गुण पाइछि और से कौन पाइछि बापा ठू किंतु किछि गुण पाइछि किंतु चीनी ठारे खाली माँ और बापार गुण नाही माने खाली पैतृक गुण नाही ता पाखरे किछि नूतन गुण मध्य परिलक्षित होइछि बुझिला तापरे से चीनी जेते बेले बाहा हेबो तार पिला हेबे ठीक अच्छी तो एई पिला ठारे कौन हेबो चीनी रो किछि गुण आसीबो प्लस ता बापा ठू किछि गुण आसीबो आउ किछि नूतन गुण मध्य आसीबो बुझी पारिलो ना माँ बापा गुण तो आमको मिलूची ता सह तो आमको कौन किछि नूतन गुण मध्य मिलूची जहा कि माँ बापा संगे समान नुहे तापरे देख एई पीढ़ी रे एटा थिला प्रथम पीढ़ी ठीक अच्छे एटा हैला द्वितीय पीढ़ी एटा हैला कौन तृतीय पीढ़ी तो जेते बेले एई पीढ़ी रु एई पीढ़ी को गुणटा आसीला एठी देखिबो जे किछि गुण तो आसीला किंतु किछि नूतन गुण मध्य एठी परिलक्षित हैला तापरे नेक्स्ट पीढ़ी रे आहुरी किछि नूतन गुण परिलक्षित हैला सेथि पई कोन हैला पीढ़ी परे पीढ़ी नूतन गुण गुड़िक माने आविर्भाव हे चलीला जहा फल रे कि कोन हैला ना जीव माने दुईटी जीव माने संपूर्ण एक प्रकारर न होई सेमानक मध्य रे कोन हैला किछि दृश्य रूपी तथा जीनीय तफात देखा देइथा जेमिति कि एठी जदि देखिबा याकू जदि आमे देखिबा या ठारे जो गुण करी ये ता माँ बापा भलिया देखिबा किछि किछि अछि किंतु से तार जेजे माँ जेजे बापा भलिया कम देखा जिवो बुझिहेला तो एमिति होई थाए पीढ़ी पर पीढ़ी जेते बेले नूतन गुण गुड़िकर आविष्कार हे चली सॉरी नूतन गुणिकर आविर्भाव हे चली थाए सेति भाई दुईटी जीव देखिबा को कोन संपूर्ण अलगा एई दुईटी जीव कोन देखिबा किबा एई दुईटी जीव संपूर्ण देखिबा को कोन अलगा बुझी पारिलो ना कहीं ना नूतन गुण गुड़िकर कौन होता है विकास हो चली थाए खाली आम पाखरे जो गुणटा अच्छी खाली माँ बापा ठू पाइनु आम पाखरे किछि निजर भी गुण अच्छी जोटा कि आविर्भाव होइछि बुझी पारिला ना तापर जिनस देख जदि तुम गुण गुड़ाक तुम माता पिता ठू आसीछि ताहेले तुम आ तुम भौणी मध्य तफात कहीं अच्छी देख तुम्हें आ तुम भौणी ठीक अच्छे तुम पाखक जो
गुण आसी ताहा तुम माता पिता आसी आ तुम भौणी पाखक जो गुण आसी जहाँ भी तुम माता पिता आसी ताहेले तुमे आ तुम भौणी पाखर तुमे आ तुम भौणी देखा अलग किपरि तुम मानकर ब्लड ग्रुप अलग कहीं थाए कहीं गुण गुड़िक तो तुम माता पिता आसी देख कहीं आम पाखरे केवल माता पिता गुण आसी न थाए आम पाखरे किछि नूतन गुण मध्य परिप्रकाश होता है से तुमे तुम भौणी भलिया एका देखा माने किछि गुण तो तुम भौणी सहित सामान थाए किंतु किछि गुण कौन तुम अलग थाए तुम भौणी ठारू कहीं ना आमठारे माता पिता गुण आसवा छड़ा किछि नूतन गुण मध्य प्रकाश होइथिबो माने तुम पाखरे किछि नूतन गुण प्रकाश होइथिबो आ तुम भौणी पाखरे अन्य किछि नूतन गुण प्रकाश होइथिबो बुझी पारिलो ना। तापरे देखो नेक्स्ट पॉइंट प्रजनन समय रे माता पिता ठारू समान परिमाण रे जीनीय पदार्थ जुग्मक जरिया रे संतान निकट को आसी थाए प्रजनन समय रे कौन हुए देख ठीक अच्छे प्रजनन समय रे माता पिता ठारू समान परिमाण रे जीनीय पदार्थ संतान निकट को आसी थाए कहा जरिया रे जुग्मक जरिया रे देख एटा है मनकर चीनी ये गोटे झील ठीक अच्छे ता पाखरे केतोटी क्रोमोजोम बा केतोटी गुणसूत्र अच्छी 46 टी गुणसूत्र अच्छी बा आमे कहि परिबा 23 जोड़ा गुणसूत्र अच्छी 23 जोड़ा बा 46 टी ठीक अच्छे ताहले ए 46 टी गुणसूत्र मध्यरु से 23 टी गुणसूत्र काहाठु पाइछि ता बापांकठु पाइछि आ 23 टी गुणसूत्र जोटा ता पाखरे अछि से काहाठु पाइछि मांकठु पाइछि बुझी पारिलो ना। ताहले प्रजनन समय एक्चुअली कौन हुए तुम्हें जानी प्रजनन समय कौन हुए पुंग जुग्मक ठीक अच्छे और स्त्री जुग्मकर समायन हो कौन सृष्टि हुए जुग्मज सृष्टि हुए पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर समायन हो कौन सृष्टि हुए जुग्मज सृष्टि हुए ताहले এই পুগ যুগ্মকরে কেতোটি গুণসূত্র থাए n সংখ্যক বা ইয়াকু आमे कौन कही एक गुणितक बा हाप्लॉइड कही था सेमिति स्त्री जुग्मकरे केतोटी क्रोमोजोम बा गुणसूत्र थाए n संख्यक बा याकू आमे कौन कही था एक गुणितक बा हाप्लॉइड माने अधा अच्छी देख बुझीपार ना यहाँ जुग्मक कथा कहूँ है तो ये कौन आसला 23 टी अच्छी स्त्री जुग्मक केतोटी गुणसूत्र अच्छी 23 टी तापरे पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर समायन घटी कौन सृष्टि है जुग्मज सृष्टि है आ से जुग्मजटा जिते बेले सृष्टि है से जुग्मज पाखरे केतोटी टोटाल गुणसूत्र आसिला एठू एन आउ एठू एन माने टोटाल 2n बुझीपार कहीं जोटा कि प्रत्येक मनीष पाखरे 2n संख्यक गुणसूत्र थाए बुझीपार ना बा 46 टी एठू 23 टी आसी आ एठू 23 टी आसी मोट केतेटा हैला 46 टी बुझीगला ना। तो देख एठी मांकठू देख एटा पुंग जुग्मक माने एटा काहाठू आसी बापांकठू आसी 23 टी आ एटा स्त्री जुग्मक माने काहाठू आसी माठू आसी 23 टी। तो देख जेते बेले प्रजनन हैला कौन हैला समान संख्यक जीनीय पदार्थ आसिले एठू भी 23 टी गुणसूत्र आसिला एठू भी कौन आसिला 23 टी गुणसूत्र तो मांकठू और बापांकठू कौन आसिला समान संख्यक जीनीय पदार्थ आसिले कहा पाखकू जुग्मक पाखकू बुझे सॉरी जुग्मज पाखकू बुझीगला ना आ कहा जरिया रे आसिले जुग्मक जरिया रे आसिले एटा होची पुंग जुग्मक एटा होची स्त्री जुग्मक समायन घटी कौन सृष्टि है जुग्मज तो सेटा ही आमे पढ़िले प्रजनन समय रे माता पिता ठारू समान परिमाण रे जीनीय पदार्थ आसी थाए माने बोथ दुई जनकठू केतोटी गुणसूत्र आसी थाए 23 टी बुझीपार जुग्मक जरिया रे संतान निकट को आसी थाए। तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट सेथि मध्यरु किछि गुण संतान निकट रे प्रकट हेउथबा बेले आउ किछि गुण अदृश्य होई रहि जाय। तो देख एठू आसिला 23 टी एठू आसिला 23 टी माने टोटाल हे गला 46 टी तो ये 46 टी मध्यरु किछि गुण कोन हो किछि गुणसूत्र कोन हेबे निजको प्रकाश करिवे आउ किछिटी कोन होई जिवे अदृश्य होई रहि जिवे किछि गुण कोन होई जिवे किछिटा प्रकाश हेबे आउ किछिटा कोन होई जिवे अदृश्य होई रहिबे। प्रथमे कहे गुणसूत्र ए गुण मु जहा कहूची गुणसूत्र
ए 23टा कौन एटा हूँ गुणसूत्र, एटा कौन गुणसूत्र 23टा गुणसूत्र बाई जो आम 46 लिखीचे एटा कौन एटा हूँ गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्रटा कौन ए गुणसूत्रटा हूँ ये गुणसूत्रटा आमर कोष भितर थाए। आम कोष भितर कौन अच्छी न्यष्टि बा न्यूक्लियस, ठीक अच्छे से न्यूक्लियस भितर ये गुणसूत्रटी थाए। बुझीपार ना ये गुणसूत्रटी कौन करे आम गुण निर्धारण करे, आम गुण निर्धारण करे। ठीक अच्छे तुम चुटीर रंग कला अच्छी, तुमर हाइट छोट अच्छी ना बड़ अच्छी, यही सब जिनस तुमर ब्लड ग्रुप कौन अच्छी ए बी कि ओ ए सब किए निर्धारण करे गुणसूत्र ही निर्धारण करे। बुझीपार ना तो यही गुणसूत्र कौन दिए आमको गुण दिए। बुझीपार ना गुणसूत्र जो ही आमको गुण मिली थाए बा गुण को निर्धारण करे किए गुणसूत्र। तो एठी जेते प्रकाश पाई पारे। बुझीपार तापरे देखिबा आमे वंशानुक्रम पद्धतिर उत्पत्ति किपरि हैला। वंशानुक्रम माने कौन माता पिता ठू जो गुणटा तांको छुआ पिलांको ठई आसे ताकू कौन कहा जाए वंशानुक्रम कहा जाए। बा तुम माता पिता ठू तुमको जो गुण गुड़ाक मिली ताकू आमे कौन कहिबा वंशानुक्रम। बुझीपार तो वंशानुक्रम विज्ञानर जनक किए माने ये वंशानुक्रम विषय फास्ट किए कही ग्रेगर जोहान मेंडेल नामक जड़े वैज्ञानिक यही वंशानुक्रम विषय सूत्र प्रदान करथिले। तांको ना कौन ग्रेगर जोहान मेंडेल। ठीक अच्छे तो से ग्रेगर जोहान मेंडेल किए थे आम जाना। देख ग्रेगर जोहान मेंडेल कौन थे से धर्मजाजक भागे ऑस्ट्रियार एक गिर्जार काम करुले। गिर्जा माने जानी ना तो से कौन करुले से गिर्जार काम करुले। ठीक अच्छे किए ग्रेगर जोहान मेंडेल है। तो जिते बेले से गिर्जार काम करुले से गिर्जार गोटे गार्डन थिला बुझीला गोटे बगीचा थिला आ से बगीचारे अनेक गुड़े मटर गछ थिला। तो से कौन करुले ना से मटर गछ गुड़ी को प्रत्येक दिन देखुले। ठीक अच्छे से लक्ष्य करुले और से देखुले जे मटर गछरे बहुत प्रकार तांकर बहुत मटर गछ को देखि तांको मनरे बहुत कौतूहल जात होउथला। बुझीला आ से देखुले जे गोटे मटर कियारी रे जेते भी गछ गुड़िक अच्छी समस्त उच्चता कौन भिन्न अच्छी माने सबू मटर गछ एक हाइट्र नहांती कहार कौ मटर गछटा डेंगा अच्छी तो कौ मटर गछटा गेड़ा अच्छी बा छोट अच्छी। बुझीपार ना आहरी मध्य देखुले जे से जो मटरर आकृति अच्छी से आकृतिटा मध्य समान नुहे कौ मटरटा पूरा गोल अच्छी तो कौ मटरटा पूरा चेप्टा अच्छी ता मंजीटा। बुझीपार कि से मटर गछर फूल को देखुले। ठीक अच्छे तो कौ फूलटा हलदिया अच्छी तो कौ फूलटा धला अच्छी। तो से सब बेले चिंता करुले जे मटर गछ गुड़िक सबू गछ गुड़िक एक प्रकार कहीं नुहंती कहीं से मटर गछ गुड़िक देखा अलगा तांको हाइट कहीं अलगा तांको फूलर रंग कहीं अलगा तापरे तांको मंजीर आकृति किपरि अलगा। ठीक अच्छे तो से यही सब कथा भावुले। ठीक अच्छे आ से या को जानिबा पई किछि परीक्षण कले। बुझीपार ना से ए सब कहीं होछि ताहा जानिबा पई परीक्षण कले। तो से कौन कले मटर गछ को नहीं तांकर परीक्षा आरंभ करदेले। बुझीपार ना कि कहीं एमती होउछि से मटर गछरे 7 जोड़ा गुण चिन्हट करथिले कौ कौ गुण से आमे परे देखिबा। ठीक अच्छे से मटर गछरे कौन करथिले 7 जोड़ा गुण चिन्हट करथिले। तापरे देख वंशानुक्रम रे एही विकल्पी गुण गुड़िकर विकास प्रणाली जानिबा पई मेंडेल प्रथमे गोटिए जोड़ा विकल्पी गुण नहीं परीक्षा आरंभ करथिले। ठीक अच्छे से केते जोड़ा विकल्पी गुण नहीं गोटिए जोड़ा मु परे बतेबी कौन सेटा। ठीक अच्छे नहीं परीक्षा कले और पीढ़ी पर पीढ़ी अनुध्यान करने समय अन्य विकल्प गुण गुड़िक प्रति ध्यान दे नथिले। देख से तो एक्चुअली 7 जोड़ा विकल्पी गुण चिन्हट करथिले किंतु जेते बेले से परीक्षा कले 7 जोड़ा गुण को परीक्षा करि नहांती एका संगे से केते जोड़ा गुण को परीक्षा करुथिले गोटिए जोड़ा विकल्पी गुण को ही परीक्षा करुथिले। और जेते बेले परीक्षा करुथिले अन्य गुण गुड़िक प्रति ध्यान देउ नथिले जेमिति कि से प्रथमे जो परीक्षा करिथिले से गोटिए जोड़ा ही गुण नैथिले माने सेटा होछि गच्छर उच्चता। ठीक अच्छे आ सेते बेले से आउ कोनोसी कथा को ध्यान देई नथिले से खाली गच्छर उच्चता ऊपर ही परीक्षा करुथिले। आ पीढ़ी पर पीढ़ी से मटर गछ गुड़ी को देखि चलीथिले जे तांकर उच्चता रे किपरि केमिति परिवर्तन होउछि। बुझीपार ना सही परी अन्य विकल्प गुण गुड़ी को नहीं से वंशगति अनुध्यान करथिले और गुण गुड़िकर विकास संपर्कित गाणितिक सूत्र बाहर करथिले। तो से मटर गछर गुण गुड़ी को नहीं कि परीक्षा करथिले। ठीक अच्छे आउ से
ତା ସହିତ ତାର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଯେଉଁ 7ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ 7ଟି ଗୁଣକୁ ମଟର ଗଛରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ସେଇ 7ଟି ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମଟର ଗଛରେ 7 ଜଣା ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଡେଙ୍ଗା ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ତାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଗେଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି ନା ଯୋଡ଼ା ଅଛି। ଦେଖ, ଯୋଡ଼ା ମାନେ ଦୁଇଟା ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଡେଙ୍ଗା ବି ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଗେଡ଼ା ବି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ମଞ୍ଜିର ଆକାର ଗୋଲ ବି ହେଇପାରିବ, କୁଞ୍ଚିତ ବି ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଲର ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେ ଫୁଲଟା ଅକ୍ଷରେ ଫୁଟୁଥିବ ନହେଲେ ଅଗ୍ରରେ ଫୁଟୁଥିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ମନେକର ଗୋଟିଏ ଗଛଟା କ'ଣ ହେବ? ଡେଙ୍ଗା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗେଡ଼ା ହେଇଯିବ। ମଞ୍ଜିର ଆକାର ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟା ଗୋଲ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଚେପ୍ଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଫୁଲର ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା କି ଫୁଲଟା କେଉଁଠି ଫୁଟୁଛି, ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟା ଗଛର ଅଗ୍ରରେ ଫୁଟୁଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଫୁଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଗଛ ହେଲା ଗଛର ଅଗ୍ରରେ ଫୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଗଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗଛର ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଫୁଟୁଛି ଅକ୍ଷରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ, ତ କେଉଁ ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଥିଲା ତ କେଉଁ ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ହଳଦିଆ। ସେମିତି ସେ ଏପରି କ'ଣ କେତୋଟି ଗୁଣ ନେଇଥିଲେ? 7ଟି ଗୁଣ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ମାନେ ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିବ, ଡେଙ୍ଗା ଗେଡ଼ା। ଗୋଲ ହେଉଥିବ ନହେଲେ କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଥିବ। ଫୁଲର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ଷରେ ହେଇଥିବ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଅକ୍ଷରେ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଅଗ୍ରରେ ହେଇଥିବ। ସେହିପରି ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଧଳା ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସେ ଆଉ କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ସେ ଚୋପାର ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗଛର। ଚୋପାର ଆଉ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ଥିଲା? ଚୋପାର ରଙ୍ଗ ଧୂସରିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଚୋପାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଧଳା। ତାପରେ ଛୁଇଁର ଆକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ବାହାରିବ ସେ ମଟରରୁ ତାର ଆକାର ସ୍ଫୀତ ହୋଇଥିବ ନହେଲେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା କଅଁଳିଆ ଛୁଇଁର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ ହେଇଥିବ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଧଳା ହେଇଥିବ। ତ ଏମିତି ସେ ମଟର ଗଛର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଲେ। ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବିକଳ୍ପୀ ମାନେ ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ, ଅଲଗା ମାନେ ଡେଙ୍ଗାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ଗେଡ଼ା। କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ଧୂସରିଆ ଧଳା। ତ ଏମିତି ସେ ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କଲେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।